वगैरह, एग्ज़ाम कैंसिलेशन वगैरह, और जो सीट्स जो हैं वो भेजी जा रही है। तो आई थिंक सो सर कि गलत है सर बात है, और जितनी भी वाली देख रही हैं। देखिए, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी को दिल को दुखाऊं, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मेरी बातों से किसी को बुरा लगे। बस ये सारे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ माननीय सरकार, माननीय जितने सर हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप इसके ऊपर प्लीज़ फिक्स करें, एंड दैट्स ऑल। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी उम्र के भी बच्चे, मेरे छोटी उम्र के भी बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। सारी चीज़ें बराबर होती हैं, सारी चीज़ें मैं जैसा देखता हूँ, मैं जैसा ऑब्जर्व करता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन सर, नथिंग इज दैट। आपसे बात करके आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी तरह। हाँ, ये सर उसके लिए मैं आपसे भी समझ। After that, when we practice a lot, we gain many things, we gain many knowledges about these all types of criteria, these all about things. And after that, this was a final year when I heard about the Jantar Mantar protest also, and with that intention I came here. And after that, I heard that this protest is totally different. This is about JPSC and JSSC, the paper cancellation. So, you know, I came here, and after that, one sir was interviewing a couple. His name is Neeraj sir. He was from the Vichar Jharkhand. After that, he moved his camera, all the mics to me, towards me, and after that, he asked from the simple questions. I was able to answer that all the famous question, and that is the main motive that makes me viral. So the knowledge from your and Jharkhand topper how you speak makes you a viral. I think you have the knowledge of many kids above your age. So just right now, what what's going on, what are the parties and what's going on in Jharkhand? Yeah, so the thing that I was underlining over here, and I would like to underline over here, that I just knew about the Jantar Mantar. They were protesting because of the NEET paper, and now we are protesting because of the JPSC and JSSC exam cancellation. So this was the thing that I have heard about. Okay, so at Jantar Mantar you were following what's going on Delhi, what's happened. Okay, so do you know anything like before this about politics, or like you increase your knowledge like at this place? I don't know 1% of the politics. I don't know 1% of the politics, because the thing I'm sharing to you all beautiful guys is my own thoughts, and 10% that the knowledge I have gained from the internet, across from AI, and like that all. So, sir, this is my final answer, because I have no political knowledge about these all parties. And just at last, introduce yourself. Who are you? What is your age? How your friends and family treated you after you became the viral guy? Okay. So I'm Zanik Dusadi. My age is 13 years old. I study in class 6. I'm in St. John's School, and my parents are quite happy. My friends are too happy, and they are treating me as well. When I was small, and they were treating me like this, and now they are also treating me like that. No changes, no. They are feeling good. Okay, so thank you Jan, for all of this, and first of all, I would really want to thankful to the sir that you're asking me right now. The story behind my famous is quite lengthy and quite too much time taking, because I have been practicing these all things from since I was 4 or 5 or 3. So when I was practicing since from the 2000 द्वारा हम अपने पेरेंट्स के बीच पर खड़े होते हैं, लेकिन सर अगर ऐसा लगे रहा कि कहीं पेपर लीक हो रही है, तो कहीं एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो जाए, तो कहीं OMR शीट आ जा रही है, तो सर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये आगे बढ़ना। आप क्या प्लान करते हैं फ्यूचर में? सर मैं यही प्लान करके अभी से रखा हूँ कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगा फ्यूचर। यू वांट टू बिकम अ टीचर? या तो मैंने क्या आप इंग्लिश सिखाते भी अभी? हाँ सर, मैं सिखाता हूँ। मेरा एक चैनल है जैनिक डैड करके, मैं यूट्यूब में भी हूँ, इंस्टा में भी हूँ, बोल में, तो उसमें कोर्स वगैरह भी। तो जो बच्चे आपसे बड़े आते हैं उम्र में, वो देखते हैं कि आप 13 साल के और आप उन्हें सिखा रहे हैं, वो कैसे लेते हैं इस चीज़ को? हाउ डू दे टेक इट? ऐसे कि मैंने जितना भी रिव्यूज़ देखा है, तो वो बहुत खुश हैं, वो भी खुद प्राउड है कि यार कम से कम एज मैटर नहीं करता, एक मुझे वो स्किल तो दे रहा है ना। एज तो बहुत दूर की बात होती है वहाँ पर, कम से कम वो मुझे स्किल दे रहा है, क्योंकि स्किल सीखने और सिखाने के लिए एज की ज़रूरत है। बड़ा
छोटा नहीं देखा। एक आइडियलिस्टिक बात हो गई, मैटर नहीं करता, कुछ तो मन में आता ही होगा, कुछ तो लोग कुछ तो आता होगा। हाँ, जनरली मुझे ये भी सुनने को मिला है कि ये इंग्लिश सिखाएगा लाइक दैट। तो हम इंसान लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा वही तो, बोलते हैं। वही तो। ये तो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि एज डजंट मैटर, और ये होना भी चाहिए, लेकिन एक आदमी के तौर पे बंदे को आती है 13 साल का बच्चा मुझे नहीं सिखाएगा, ऐसा बोलते हो लोग। हाँ हाँ हाँ, बोलते हैं। बट आप अपने काम से उनको प्रूव करते हो कि नो हम बढ़ते हैं, आप सीखे हैं। हाँ, अगर मैं अभी भी ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं भी उतना ज़्यादा अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता, उतना अच्छा इंग्लिश को मैंने मास्टरी नहीं किया है। जब तक इंसान की ज़िंदगी है, इंसान सीखता है। अगर जिस दिन वो समझ गया कि वो मैं सारी चीज़ें सीखने हूँ एनफ है, तो उसी दिन उसकी ज़िंदगी एक बात बताओ, कि आपकी उर्दू ऐसा है, हाँ हाँ, सही इस वक्त में हम लोग तो क्या बोलते हैं, सीखते हैं या घर पे पापा बात करते हैं तो उस वजह से अच्छी हो रही है? सर मेरे मॉम डैड मेरे पेरेंट्स सही बता रहे हैं। मुझे पसंद है। और क्या साहित्य में, बहुत अच्छा। लिटरेचर में, उर्दू पोइट्रीज में या हिंदी पोइट्रीज में? सिर्फ गॉड कोई फिक्स होता है, सेंस आई थिंक से गॉड फिक्स होता है। अच्छा, एक एकदम इम्पोर्टेंट बात मुझे लगता है इसका लफ्ज़ हाँ, क्या बीइंग ए जेन अल्फा, हमने अपर एजुकेशन की तो बात करी, लेट्स कम टू द लोअर प्राइमरी एजुकेशन। आप कौन सी क्लास में हैं? सर मैं 6th पे हूँ। आप 6th क्लास में हैं। आप कैसे देखते हैं आपके आसपास की जो एजुकेशन सिस्टम है? मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को वेस्टर्न से कंपेयर करें, बट हम अपने ज्ञान के बराबर जैसे AI आ गया है, आप 13 साल की उम्र में इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट आ गया है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को अब रिफॉर्म की जरूरत है? और अगर रिफॉर्म की जरूरत है तो किस डायरेक्शन में? क्या आप लोगों से ही डिस्कस करके उसको रिफॉर्म करना चाहिए या बड़े लोगों को ये तय करना चाहिए? सर सबसे पहली बात टीचर भी बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर करते हैं। दे वर नॉट लाइक दैट कि एक बार वो बोलती हैं कि 1000 बार पूछो, मैं 1000 बार डाउट्स क्लियर करूँगा, उसके बाद मैंने पूछा तो वो मुझे डांट दिया। नहीं, वो वाला नहीं है। जब भी आप पूछो वो क्लियर करते हैं, प्यार से बात करते हैं, किसी भी तरीके का डर पैदा नहीं करते बच्चे पे। कल स्कूल में जैन को मिठाई मिलेगी। कोई नहीं, बताओ मजाक कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं सर, तो उस तरीके का डर नहीं क्रिएट करें। और भी सर, और मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारी है वो थोड़ी सी और इम्प्रूव होनी चाहिए, और भी जो है ना डाउट्स क्लियर वाले होने चाहिए, और भी बच्चे की डाउट्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब तक अगर हमारी डाउट्स क्लियर नहीं होंगी, मान के चलो अभी भी मैं इस प्रोटेस्ट में हूँ, मेरी बहुत सारी डाउट्स भी क्लियर नहीं, मान के चलो आपने किसी और एमएल से कुछ क्वेश्चन कर दो तो वहाँ पे तो मुझे एरर फेस करने को मिलेगा ना, वहाँ पे तो मैं अटक जाऊँगा। सो वो सारी चीज़ें सर, सो बस और कुछ इंटरव्यूज देना, बोलना, ड्राइंग्स बनाना, खेलना कूदना। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ मीडियम थ्रू व्हिच यू कैन मतलब अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपनी सारी भावनाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, अब आप जनरली बात नहीं कर रहे हो किसी से तो आपकी लाइफ तो डिप्रेशन में चली जाती है ना। आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप अपनी सारी जो सैडनेस है, हैप्पीनेस है, वो आप किसी को बता नहीं रहे। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप बात करें, आप कम्युनिकेट करें लोगों आपको लगता है कि आपसे जो प्रीवियस जनरेशन है, मेरी जो जनरेशन है, वो साइंटिस्टिक होती जा रही है, कम कम्युनिकेशन? This is the key. From Ranchi, what provoked you to come here to this protest? Please tell me. The first thing I would really like to share to all the publics who's watching right now, that when I was scrolling, then there was a very important topic that was about the Jantar Mantar, and that was a Jantar Mantar, sorry, and that was a Delhi protest. So generally I came here, it's a JPSC and JCC paper cancellation protest. It's happening on Ranchi right now because we're asking for the one thing, that every exam should be conducted, it should be conducted with the transparency and with the fairness, and every student should get the chance with the help of fairness. And our protest is with a peacefully and it's in a constitutional way. So that forced me that I also raise my voice for my future, and I also raise my voice for the Didis and Bhaiyas who are continuously 15 to 12 years. They just seek the parents' future, the parents' dreams, and they really want to just fulfill it. So What class do you read? I'm reading at class 6. Oh my goodness! Look at this guy. The speaking. इसको देखिए. He speaks in Hindi also. आप बोलिए हिंदी में कि आप इतने देर तक बैठे हुए, इतने लोग बाइट ले रहे हैं, आपका चेहरा तो सूख गया है, आपको प्यास नहीं लग रही है? नहीं सर, मुझे प्यास नहीं लगी। देखो कितना अच्छा। हमारा नाम क्या है? मेरा नाम जैन। You have studied where? I studied in St. John's School. Oh my I'm goodness. studying
means you have an accent of US, right? yeah. So you studied in US or something like that? No, I didn't study. Oh my goodness! Look at this guy. मतलब क्लैप कीजिए इसके लिए, एक बार ताली बजना चाहिए प्लीज। इस बंदे के लिए क्लैप बनता है यार, ये बंदा अलग लेवल का है, बंदा नहीं है बच्चा है यार, और ये अलग लेवल का तेरे गला सूख रहा है भाई प्लीज। लव यू टेक केयर यार, अब मत रो भाई। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो, क्या आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। मेरा नाम जैन है, जैन अग्रसर है। मैं सेंट जॉन्स स्कूल में तो मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। और जनरली मेरी जो हॉबीज़ हैं वो है ड्राइंग्स बनाना, गेम्स खेलना। तो इस प्रोटेस्ट से आप क्या लोगों को बताना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो लोगों को, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट में आपको आगे आना चाहिए और लोगों को उत्साह करना चाहिए इस प्रोटेस्ट के? सर, सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि आप अब जब तक अपनी आवाज़ को रेज नहीं करेंगे, जब तक अपने ओपिनियन को रखेंगे नहीं, तब तक कोई आपकी बात नहीं। सबसे पहले ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो अधिकार की मांग है। हम एक चीज़ की मांग कर रहे हैं जो कि ये है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ कंडक्ट किए जाएँ, सारे स्टूडेंट्स को उनके हिसाब से मौका मिले। और जनरली हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये पीसफुली है, अपने सिचुएशन में है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप आवाज़ उठाएं, अपने अधिकार की मांग करें। यू आर थिंकिंग दैट समथिंग दैट इज डैमेजिंग द एजुकेशन सिस्टम एंड दैट्स ऑल, प्लीज़ आप इसके लिए आवाज़ उठाएं। तो जैन, जैसा कि हम सबको पता है कि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आई एम सीइंग यू लास्ट वीक, यू नो दैट कि मैं आपको देख रहा हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है और यू आर गेटिंग सो मच थिंग्स अबाउट प्रोटेस्ट। ये नॉलेज आपको आ कहाँ से मिली, आपकी इंस्टीट्यूशन कौन है, क्या मुझे आप बता सकते हो? सर, ये सारी नॉलेजेस जो है वो मेरे फादर से आई हैं। मेरे फादर ज़्यादा कष्ट करते हैं। उसके बाद जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो वो ओके, तो आप अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट करना चाहते हो, कैसे आप मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को बोलना चाहते हो कि आपके साथ में क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इस चीज़ के लिए और आगे लोगों को? तो सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं कि जो हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे सारी की सारी जो डिमांड्स हैं, हमारी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करें। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश और भारत की इंडिया को आगे पुश करें। एक्चुअली मैं लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी हर जगह से प्रोटेस्ट यहाँ तक कैसे आ जाए, जैसे आप मुझे बता सकते हो अगर आपको चीज़ की नॉलेज है? सर, मुझे तो वैसे नहीं लगता है कि यहाँ का प्रोटेस्ट अलग है, सिर्फ यहाँ का वो मुद्दा अलग है। जनरली जो अभी ज़्यादा फेमस हुआ था जनता पार्टी वाला, वो प्रोटेस्ट थी नीट पेपर लीक के ऊपर। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो जेपीएससी और डीएसएससी पेपर कैंसिलेशन के ऊपर है। बस सिर्फ यही डिफरेंसेस देखने को मिली, वहाँ तादाद ज़्यादा थी, तादाद थैंक यू सो मच।